Good morning, everyone. Good morning, sir. So which was the last question in the previous class? याद है आपको? I think this was the last question. Yes or no? ये हो गया था सर। हाँ हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था या इसके बाद भी किया था अपन ने? यस, नहीं, ये था लास्ट क्वेश्चन। एक बार अगेन ट्राई करिए फॉर दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन था ये। यस, करेक्ट 57। वन इज 57। अनुज, मंजीत, योर आंसर? यस सर, 57। 57, ओके। 57, sir. नहीं यार, ये भी हो गया था। चलिए फिर फ्रेश क्वेश्चन पर मूव करें। आई थिंक ये तो कवर हो गया था। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लें। यस, हाँ जी। Try to solve this one. A man bought some number of eggs at the rate of 3 eggs for 5 rupees and sold them at the rate of 5 eggs for 12 rupees, and therefore he gained 143 in all. Find the number of articles that he bought. Yes, guys. रेस्ट स्टूडेंट्स के भी नींद नहीं खुले। वन 96। राठी जी are very close, but I think 196 is not the correct one. हाँ, इन थर्ड अटेम्प्ट आपने करेक्ट आंसर दिया है। गुड। यस गाइस। अनुज, मंजीत, आश्वी, तो अनुज, डिस्कशन रिक्वायर्ड फॉर दिस वन? No, sir. I will be able to do it, but थोड़ा time चाहिए इसके लिए. ओके, ट्राई टू डू इट फास्ट बेटा। रोनी बेटा, नींद नहीं खुल रहा टाइम से? सर एक बार ज्वाइन किया था बट हुआ नहीं था थोड़ी देर पहले। तो तुमने कहा थोड़ी देर और सो ले हैं? नो सर। देखिए, फॉर दिस क्वेश्चन आपको गिवन है
cost is 5 rupees against 3x at the time of purchase. And when selling, rate is given 12 rupee for 5x. But in the language, a man bought some number of x and sold them. Sold them, it means for all x. So quantity should be same in both the cases. तभी आप compare कर पाएंगे actually profit and loss के बारे में. So 3 and 5 your LCM value is 15. It means 15x के respect में आपको purchase और sell दोनों count करना है. So 3 to 15, it means 5 times आपने quantity किया. So your price is also will become 5 times. It means 25 rupees. And 5 to 15, it means 3 times. It means price 3 times. It means 36 rupees. It means 15x को परचेज और सेल करने पर 25 रुपीज परचेज करने पर 36 रुपीज सेल करने पर मिल रहा है. इट मीन्स ऑब्वियसली 11 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है. Anuj, till this step, everything is fine. Yes, sir. Okay. Now, your question says his profit value is 143. 143. So how much times profit? 11 to 143. It means 13 times profit. To get this 13 times profit, your quantity also be 13 times. It means 15 into 13, which is equal to 195. Clear? Yes, sir. Saloni, got it? Yes, sir. Okay. Your next question says, a loss of 20% is incurred when 6 articles are sold in 1 rupee. To gain 20%, how many articles should be sold in a rupee? So in this situation, your profit is in terms of quantity. Easy question है. प्रैक्टिस किया था आपने लास्ट क्लास के बाद? एक आंसर आया है. Yes, rest students, your answers. Pandit, Anuj, Ashvi, Saloni. Or any problem to solve this? So I think discussion required for this question. Yes?
Rathi, how to get this answer 4? हाय सर। सो मैंने थोड़ा नंबर राउंड करने के लिए अज्यूम कर लिया कि 60 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 10 रुपीज। नाउ 10 इज अ 20% लॉस, मतलब इट इज 80% ऑफ कॉस्ट। Okay. सो टू गेट द कॉस्ट 10 डिवाइडेड बाय 80% इज 12.5। Hmm. 12.5 is my cost price now, and I have to gain 20% over that. So 12.5 plus 20% is my new selling price, Hmm. and I have to keep total selling price as total sales as rupees 10. So Hmm. rupees 10 divided by selling price per unit will give me new number of units. Okay. So is there any approach, any other approach to solve this question easily? Yes, Ashvi, your approach? Sir, I found the selling price of one article and then use the X method to solve it. So selling price of one article is, 1 by 6. in that situation, your cost price will be 5 by 24. 5 by 24. Okay. अब इजीली कैसे डील करेंगे इन दिस सिचुएशन वो समझते हैं। अब दोनों का प्रोसेस ठीक है, बट इट टेक्स सम टाइम। देखिए, व्हेन मैं सपोज क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सिंपल क्वेश्चन। यस, रेस्ट 4 स्टूडेंट्स, मिस्टर मंजीत एंड सलोनी, जो भी है, अनुज, यस। मेरे को बताइए, इफ 5 पेन कॉस्ट is 25 rupees. So what is the cost of 25 pence? At least ये तो easily कर सकते हैं through mental calculation. 125. 125. Everyone got same? It is 125 rupees. Yes or no? Yes, sir. हाँ. So actually आपने quantity 5 times करी, so price भी आपका 5 times हो गया। अभी इस क्वेश्चन को मैं रिवर्स वे में पूछता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ कि 5 men can do any job in 25 days. So 25 men can do the same job in how many days? अभी क्या करेंगे बेटा? Sir, 5 days. Okay. Yes, Manjeet, your answer? Yes, so 5. 5. Saloni? Yes, sir, 5 days. 5. So actually यहाँ पर देखिए, स्टोरी रिवर्स हो गई। यहाँ पर आपने सेम प्रपोर्शन का यूज किया, बट यहाँ पर इनवर्स प्रपोर्शन का यूज किया। इफ योर मैंस आर इंक्रीजिंग इन ऑर्डर 1:5, सो ऑब्वियसली डेज आपके 5:1 के रेशियो में रिड्यूस कर गए। सो इस 5 का वैल्यू 25 था, और दिस इज इक्वल टू 5 days। अभी ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में भी यूज करना है। कैसा? नोट, व्हेन प्रॉफिट इज गिवन in terms of quantity, then use inverse proportion. How to use this? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, in 1 rupee 6 आर्टिकल सोल्ड करने पर loss of 20%. Loss of 20%, it means this, in this position your selling price will be 80%. Yes or no? Yes, sir. And question want to know, in 1 rupee how many articles should be sold to gain 20% profit? It means 120% value is required. 80% value is given and 120% value is required, and 80% value is equal to what? 6. बट ऑब्वियसली अभी आप इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज कर रहे हैं, सो 80% का वैल्यू सेम प्रोपोर्शन में ना आकर इनवर्स में आएगा, एंड 120% का वैल्यू जो रिक्वायर्ड है, सॉरी 80% का वैल्यू 6 था ना, सो 80% का वैल्यू 6 वो सेम प्रोपोर्शन में ना आकर के इनवर्स में आएगा। 120 का रिक्वायर्ड है, विच इज एक्स सपोज। सो 24 जा 26 जा 6 cancel, your x is directly 4 without any hectic calculation. Is it clear everyone? Yes, Yes, sir. sir. So ये easiest approach है in this situation कि आपने फिर पहले सेलिंग प्राइस निकाला 1 आर्टिकल का, फिर उसके ऊपर कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर जिस प्राइस के रेस्पेक्ट में बात करी उस पर गए। इतना सब करने से बेहतर है जस्ट यूज इनवर्स प्रोपोर्शन। बट अब ये ध्यान रखना है कि जब आप आर्टिकल्स के टर्म्स में डील करेंगे,
सो आपका प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, अगर वो भी वेरी करेगा तो आपको उसको कांस्टेंट कर देना होगा। सपोज इट एनी क्वेश्चन, लाइक इन दिस क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज है। A man sold 20 apples in rupee 100 and gained 20%. So how many apple did he buy in rupee 100? किसी भी अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है। इन 100 रुपीज 20 एप्पल सेल करने पर 20% का प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस तो गिवन है 100 रुपीज, आपको एप्पल्स का क्वांटिटी बता। ठीक, आशवी, मंजीत, तो आपको गिवन है इन 100 रुपीज 20 एप्पल सेल करने पर 20% का प्रॉफिट। इट मीन्स योर सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 120%। So in same price, 100 rupees, how much article, how many apples did he buy? It means cost price, which is equal to 100% year required. 120% value is given, 100% value is required. 120% value in terms of apples is 20. Yes. So this is equal to 20, which comes in inverse proportion and 100% value is required. Suppose this is X. So 25 are 26 are 5 4s are, and your X is equal to 6 into 4, it means 24. सेम कंसेप्ट यूज करना था, इजीली आपको आंसर मिलता है। नाउ क्लियर एवरीवन? Yes, sir. आश्वी, शलोनी, मंजीत, Yes, sir. Yes, sir. okay. Now the language says a man purchased two articles in rupee 480. He sold first at 15% loss and second at 19% profit. He found that each article sold at same price. ये starting point है of this question, actually main important point. Find cost price of each. So I think 30 second का question है hardly.
Guys, any problem? Mr. Rathi, 238 and 242 is your answer for the first one and second one. How to get this better? So I went with the X approach. मतलब he sold first at 15% loss. So selling price was so let the selling price is same, so selling price is X. So the Hmm. cost of first was X by 85%, Hmm. and the cost for second will be X divided by 119%. And So addition of X this is both will be constant in both situations. selling price is same. So your selling price is X. Yeah, selling price is X. Okay. So cost price of first article will be X by 85%, Hmm. and for second article cost price will be X by 119%. Hmm. And addition of both the cost is 480. Hmm. So X by 85 plus X by 119 is equal to 480. Wait, beta. According to question, selling price is same for both the articles. First sold at 15% loss. 15% loss, it means your selling price will 85% for the first one. Yes. And obviously 19% profit, it means your selling price is 119% of the second one. Hai na? So both are same. 100 to 100 cancel. 17 5s are 17 7s are. It means first and second cost price are in ratio 7:5. If you break this total value into 7:5, it means total 12 ratio value is equal to 480. It means one ratio is equal to 40. It means this is 280 and this one is 200. So the correct answer are 280 and 200. Now clear everyone? Yes, Rathi ji. So this is clear, but not getting what was wrong in my method. बेटा आपका वॉइस नहीं आ रहा मेरे पास. सर अभी ऑडिबल है बट बहुत पिच लो है उसका. है? एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड का मीनिंग है कॉस्ट प्राइस ऑफ वन एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टू विच इज रिक्वायर्ड. एंड ऑब्वियसली इस कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में अगर 15% का लॉस हुआ इट मीन्स 85% ऑफ CP1 and 119% of CP2. Both are equal because both represents the selling price. Clear now or any other problem? Yes, rest students, आप लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं. Yes, sir, clear. अनुज, मंजीत. Yes, sir, clear है. Yes, sir, clear. Almost 90% सेम लैंग्वेज के साथ में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. But this time the most important part is at all he has no profit no loss. In the previous one selling price should be same, but अभी कुछ different way में बोला है. And rest language same है. Two articles purchased in rupee 1250. He sold first at 5% loss and second at 20% profit. So cost price of each.
Sum of both the cost prices is equal to 1250. So how to manage this part? At all he has no profit, no loss. देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन था? He found that each article sold at same price. It means, according to this language, selling price is same in both cases. वही आपने किया था. But for this question, at all he has no profit, no loss. First article को 5% loss पर, second को 20% profit पर sell कर रहा है. It means loss on first is equal to profit on second. यही तो होना चाहिए, तभी तो ये आपस में प्रॉफिट एंड लॉस कैंसिल होंगे. यस और नो? Yes, sir. It means directly first का 5% is equal to second का 20%. And from this you can say directly that first and second are in ratio 4:1 and total amount is 1250. So 1250. So your correct answer is 1250. Clear everyone? Yes, sir. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट आप कैसे डील करते हैं ये इंपॉर्टेंट है. अनुज क्लियर? Yes, sir. Okay, now this question is a combination of previous two questions. So how to deal in this situation? A man sold a table at 15% profit and a chair at 12% loss. Then earning value is 540 as a profit. So if he sell table at 12% loss and chair at 15% profit, then he has no profit, no loss. अभी just recently last question में no profit, no loss deal किया. So cost price of both is required. Do it carefully.
So guys, anyone got the correct answer? Or any problem to solve this? Ashvi, Saloni, Manjeet, could I discuss? हम सब क्या कोमम चले गए क्या? कोई कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। नहीं सर, वो बना रहे हैं थोड़ा सा उलझे हुए हैं इसलिए। अच्छा नहीं, अब उलझो नहीं, छोड़ दो बेटा उसको। एग्जाम में भी आपको किसी क्वेश्चन पर इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है कि फिर आपका एग्जाम आउट ऑफ हैंड हो जाए, है ना, क्योंकि हार्डली उस पर 1-2 मिनट इन्वॉल्व करते हैं। यस, आशवी गॉट द करेक्ट वन, वेरी गुड। देखिए, अभी रिसेंटली लास्ट क्वेश्चन में आपने ये वाला क्वेश्चन डील किया था, नो प्रॉफिट नो लॉस। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट आप इजीली फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाल पाएंगे कॉस्ट प्राइस का। सो ही सेल टेबल at 12% loss. It means 12% value of this table is equal to chair 15% loss. It means 15% of chair. It means table and chair का ratio 5:4 है. Yes or no? Yes, sir. Anuj? यस सर। हाँ, सो आपके पास रेशियो आ गया। अब आप किसी भी अप्रोच को फॉलो करें, लाइक आप टेबल को एज ए 5x एंड चेयर को एज ए 4x डील करके फिर बेसिक वे पर चल सकते हैं। अदरवाइज थ्रू परसेंटेज अगर सॉल्व करना चाहें तो ध्यान से समझिएगा। मैंने इनिशियली टेबल और चेयर की वैल्यू को 500 एंड 400 कंसीडर किया। मैंने एक्स के टर्म्स में ना लेके इसको 100 के मल्टीपल में कन्वर्ट किया, बिकॉज परसेंटेज इज द पार्ट आउट ऑफ 100 और इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन मेरे को इजी पड़ता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज टेबल एट 15% प्रॉफिट। It means 15% profit out of this 500 rupees. It means 75 rupee profit. And 12% loss for chair. It means 12% meaning is 48 rupees loss. ये क्लियर है बेटा? यस सर। So overall 27 rupee profit in this situation when you take the table value is 500 and chair value is 400. Yes or no? यस सर। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ इसीलिए। नाउ योर लास्ट स्टेप, इसमें आंसर आ जाएगा सीधा, because according to this statement your profit value is 540. एक्चुअली जो डेटा आपने कंसीडर किया उसके अकॉर्डिंग 27 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 540 है। इट मींस एग्जैक्टली 20 टाइम्स है। सो टू गेट दिस प्रॉफिट 20 टाइम्स, these cost price also be 20 times. It means actually your table is equal to 500 into 20, which means 10,000, and chair value is 400 into 20, it means 8,000. Clear?
Yes, sir. Yes, rest students. Saloni, Yes, sir. Yes, sir. मेरे को बताइए इस क्वेश्चन में क्या टफ था? ऐसा कुछ था जो आपको टफ लग रहा था? ये तो बहुत इजी था। इट मीन्स आप क्वेश्चन कैसे पिक करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ओके, language of next question says a man purchased his 2 by 3 part of luggage at 5% profit and rest at 2% loss. If he gained rupee 400 in all, then cost price of luggage. So again एक प्रोसीजर है कि let the total cost price be x and 2 by 3 part of x and rest part obviously 1 by 3 part of x. Just follow the profit and loss according to the statement and get your answer. Yes. So one answer according to Mr. Rathi is 15,000. Rest students, your answers? बेटा आपने मिस्टर एक्स के थ्रू किया है? ओके। So Manjeet, Anuj, Ashvi, any problem to solve this? No, sir. Almost हो ही गया है. ओके। सो देखिए जिनका हो गया अच्छी बात है, बट एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को भी एक बार ट्राई करिए। A man purchased some number of article at rupee 96,000. He sell 3 by 8 of them at 12% profit. At what loss percent did he sell the remaining to gain 4% overall? ऑलमोस्ट दोनों क्वेश्चन का लैंग्वेज या पैटर्न सेम ही है। एंड एक्चुअली आप लोगों को टाइम लगता है इसलिए क्योंकि आप लोग अपना ट्रेडिशनल अप्रोच जो स्कूलिंग टाइम पर यूज करते रहे हैं, बिल्कुल उसी को फॉलो करते हैं। इट विल टेक सम टाइम।
So Ashvi, answer for the previous question. Sir, I did not get. ओके आपने क्या यूज किया पैटर्न, पहले ये बताइए मेरे को, ये तो क्लियर हो कि आप लोग राइट डायरेक्शन पे थे या रॉन्ग पे थे। यस आशवी, इनिशिएट कैसे किया था? 2/3 2/3 part is at 5%, so 2/3x into 5/100. And 1/3 is at 2% loss, means 98% profit. देखिए समझिएगा कि बेस्ट अप्रोच क्या है टू सॉल्व इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक तो ये जो मिस्टर एक्स वाला स्ट्रेटजी है ना, इसे पूरी तरह से अवॉइड करो। ये एक्स आपका लास्ट स्टेज है कि जब आपके पास कोई अप्रोच नहीं बचता है तब आप मिस्टर एक्स का यूज करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल ये वो स्टेज है जब आपके पास दवाओं से कोई इलाज नहीं बच रहा है, तब आप अपने ऑपरेशंस की ओर जाएंगे। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सीधे जस्ट केवल फीवर हुआ और जाके आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं ये आप लोग वो वाला अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, आपके पास दो फ्रैक्शंस थे 2/3, ऑब्वियसली रेस्ट बाय 3 पार्ट इज 1/3। सो ऐसा फिगर पिक करना है जिसे इजीली 2/3 और 1/3 में ब्रेक कर पाए, एंड ऑब्वियसली दैट फिगर मस्ट बी इन मल्टीपल ऑफ 100। सो 300 इज द बेस्ट वैल्यू जिसे इजीली आप 2/3 इट मीन्स 200 एंड 1/3 इट मीन्स 100 में ब्रेक कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैंने क्यों लिया ऐसा, बिकॉज इसके ऊपर परसेंटेज का कैलकुलेशन भी इजी है, तो मैं कैलकुलेशन को भी इजी बना रहा हूँ। आशवी, अनुज, मंजीत, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. From this part, according to question, 5% profit, and from this part it is 2% loss. 5% profit it means 10 rupee profit. देखिए इजीली आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, and out of 100 2% loss it means directly 2 rupees loss, and finally 10 rupee profit, 2 rupee loss it means 8 rupees profit when total cost price is 300. Till this step everything is fine. Yes, sir. Yes, sir. Okay. सो जब अपन ने 300 रुपीज कॉस्ट प्राइस कंसीडर किया तब आपका प्रॉफिट वैल्यू 8 रुपीज है, बट एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन योर प्रॉफिट वैल्यू इज 400। सो टू गेट दिस प्रॉफिट 400 इट मींस 50 टाइम्स प्रॉफिट चाहिए, सो आपका इन्वेस्टमेंट भी तो 50 टाइम्स होना चाहिए। इट मींस डेफिनेटली दिस कॉस्ट इज 15,000। ये इजीएस्ट अप्रोच है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस और नो? Yes, sir. Sarathi, got it? सेम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस आपने इस क्वेश्चन में ये जो फिगर गिवन है दिस 96,000 यहां से स्टार्ट किया क्वेश्चन, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में तो आपने मिस्टर एक्स को यूज किया होगा, अब इस क्वेश्चन में डेफिनेटली आप 96,000 का 3/8 पार्ट एंड रिमेनिंग 5/8 कैलकुलेट करेंगे। जितनी देर में आप वो कैलकुलेट करेंगे इतनी देर में आंसर आ जाएगा, अगर आप इस डेटा का यूज ही नहीं करते। कोई नीड नहीं है कि आप इस डेटा का यूज करें, आप इसकी जगह कोई भी डेटा लिख दीजिए, हर केस में आंसर सेम आने वाला है। इंपॉर्टेंट था कि फ्रैक्शन क्या गिवन है। He sell 3/8 of them at 12% profit. So obviously 3/8. So remaining part is 5/8. Yes guys, मेरे को बताइए अभी इस सिचुएशन पर टोटल वैल्यू आप कितनी कंसीडर करेंगे? राठी जी कह रहे हैं इट इज 2400। बेटा मेरे को लगता है सबसे बेस्ट वैल्यू है 800 and 3/8 it means 300 and 5/8 it means 500. Yes or no? Yes. 2400 भी इजी है, बट मेरे को लगता है 800 इजीली ब्रेक हो रहा है, 300 and 500. Clear everyone? Yes, sir. So from this part, according to question, 12% profit and overall profit is 4%. Overall it means out of this 800, 4% profit. So from this part, 300, 12%, 36 rupees profit, and overall 800, 4% it means 32 rupees profit.
सो देखिए ऑलरेडी आपके पास 36 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है फ्रॉम दिस पार्ट। अभी ओवरऑल मेरे को केवल 32 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए। इट मीन्स फ्रॉम दिस पार्ट आपको 4 रुपीज का लॉस होगा। किस पर? 500 पर। इन केस ये वैल्यू 100 होता तो आप डायरेक्टली कह सकते थे इट इज 4%, बट बिकॉज ये 100 नहीं है तो नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज वैल्यू। सो 4 रुपी लॉस आउट ऑफ 500 टू गेट परसेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, 4 by 5 विच इज 0.8%। थ्रू मिनिमल कैलकुलेशन आपका रिजल्ट आ जाता है। आई थिंक नाउ क्लियर एवरीवन। Guys, any problem? Sir. No, sir. देखिए 96,000 का मैंने कोई यूज नहीं किया। इवन आप इस क्वेश्चन में 96,000 की जगह इसका डबल वैल्यू भी रख देंगे, कोई भी वैल्यू रख देंगे, आंसर सेम ही आने वाला है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है परसेंटेज वैल्यू। इन केस आपको वैल्यू रिक्वायर्ड होती है इन टर्म्स ऑफ रुपीज और मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, इन दैट सिचुएशन आपको फाइनली कैलकुलेट करना पड़ता, तो वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे आफ्टर गेटिंग दिस परसेंटेज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नाउ द लैंग्वेज सेज a man sold his goods at 12% profit. If he purchased it 10% less and sold it 5.75 more, then he would have gained 30%. Find cost price. आई थिंक अब तक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इन कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस यूज है केवल परसेंटेज का और रेशियो का। सो आप कितने अच्छे से परसेंटेज और रेशियो में डील कर पाते हैं, उतने ही इजीली आपसे प्रॉफिट एंड लॉस, इवन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इट मींस कंप्लीट अर्थमेटिक के लिए बेस है आपका परसेंटेज एंड रेशियो। आपके इन दो चैप्टर्स के बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर होने चाहिए। अनुज, आई थिंक आपने कवर कर लिया होगा परसेंटेज एंड रेशियो। सर चालू किया था पर थोड़ा सा एक दो क्लास और थी बीच में, तो वो भी देखना था, तो हाँ, तो आप बस उसको 50% कवर हो गया है। ठीक। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं ना, सारा यूज परसेंटेज एंड रेशियो का है। यस सर, यस सर, इसलिए आज वाली क्लास में थोड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा है कंपेयर टू प्रीवियस वन। ऑब्वियसली पिछली क्लास आपने नहीं देखा था। अब जैसे कि अभी तक अपन कोई डिफिकल्ट फ्रैक्शन वैल्यू अपन ने नहीं डील करी है, या डिफिकल्ट कोई परसेंटेज वैल्यू भी नहीं डील करी है, इसलिए उतना प्रॉब्लम नहीं आया। बट जैसे ही कोई डिफिकल्ट वैल्यू आती है तो फिर आपको उस फ्रैक्शन का वैल्यू कंसीडर करना पड़ता है, वो आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। यस मिस्टर राठी, कैसा फील कर रहे हैं इन दिस क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम? यस, वेरी गुड। रेस्ट स्टूडेंट्स डिस्कस करें इसको।
आश्वी, मंजीत, यस सर, एक बार डिस्कस कर लो। देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में है कंप्लीट क्वेश्चन। Everyone knows cost price is 100% in itself. And according to his statement, initial profit value is given 12%. So in this position, your selling price is 112%. ये कंपैरिजन तो क्लियर है। यस सर। Now, in the next situation, if he purchase it 10% less, it means your cost price is 90% in this situation. Yes, guys, tell me the selling price in this position in terms of percentage. Yes, Manjeet, Ashvi, Saloni, Anuj. In this position, your selling price in terms of percentage. Beta, it is given that 30% profit in this situation. And The 30 130 कितना बेटा? 130%. नहीं बेटा, 130 तो तब होता ना जब अपन कॉस्ट प्राइस को 100 ही डील करते। बट दिस टाइम योर कॉस्ट प्राइस इज 90%। सो 90 का 130% आपको कैलकुलेट करना है। 117। So it is 117. It means in this position, your selling price in terms of percentage is 117%. Now clear? Yes, sir. और वैसे भी कर सकते हैं तो इतना कैलकुलेशन का नीड नहीं था। 10% ऑफ दिस वैल्यू इज 9, सो 30% इज जस्ट 3 टाइम्स ऑफ 9, इट मीन्स 27 ऐड किया इज 107। सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप कंपेयर करते हैं, सो दिस इज इंक्रीज बाय 5%, and actually this data is given in numeric value which is 5.75. So your 5% value is equal to 5.75. It means 1% is equal to 1.15. And you have to calculate the cost price, and cost price is, it means actually 100% value. So if 1% is 1.15, so 100% is definitely 115 rupees. Clear everyone? Yes, sir. I think अगर आप concept से aware हैं, so within 30 second question solve होता है। Anuj, Saloni, got it? Yes. Yes, sir. ओके, नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन से अपन जितना कवर कर चुके हैं सब कुछ, केवल लैंग्वेज आपको डिकोड करनी है एंड इजीली गेट योर आंसर इन दिस क्वेश्चन। लैंग्वेज सेज शॉपकीपर अलाउड 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस and earn 30%. He gets 90 rupees as a profit. So earning in terms of percentage भी given है, earning in terms of rupees भी given है. It means 30% is directly equal to 90. So क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करना है।
Okay, it is 130. Rest students, your answers. Manjeet also got 130. Ashvi Saloni, Yes, sir, 130. so everyone got same or any problem? अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो राइट आंसर आना चाहिए, ऑब्वियसली चलिए राइट आ रहा है, बट वे ऑफ प्रोसेस क्या है, इट मीन्स कितना फास्ट आया। सो मंजीत मेरे को आप बताइए कि आपने कैसे कैलकुलेट किया। आंसर आपका राइट है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। हम्म, वो अपन को दिया हुआ है 90 रुपीज, तो उससे अपन निकाल लेंगे कि कितना कॉस्ट प्राइस था, वो हो जाएगा 300। यस 300 में अपन 90 प्लस करेंगे तो अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एग्जैक्टली। सेलिंग प्राइस में जो अपन ने डिस्काउंट दिया 25% का, वो हटाना पड़ेगा, तो उससे आंसर आ जाएगा अपना 520। 520 is the mark price, यस। and फिर the बाकी difference उसको between mark price and selling price is value of discount. यस सर। Okay. So it means 30% profit value is given 90. So obviously 10% is 30 and 100% which represent the cost price, that is 300. ये तो आ गया आपका cost price. And because 90 rupees profit का value given है, तो 90 rupees add करने पर this 390 is the selling price. अनुज इस स्टेप तक तो सब कुछ क्लियर है? यस सर, ये हाँ अभी सर देखिए। आंसर निकल गया था लास्ट में, हाँ हाँ, तो लेट हो बट गया। मंजीत इसमें अभी 520 की नीड नहीं थी, बिकॉज आपने 520 पहले मार्क प्राइस कैलकुलेट किया, उसके बाद डिफरेंस पर गए हैं, उसकी कोई नीड नहीं है, बिकॉज सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में आप मार्क प्राइस पर जा रहे हैं और तब डिफरेंस ले रहे हैं। मैं अगर सीधा सीधा कंपेयर करूं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को, so if mark price is 100% in itself and after getting 25% discount, your selling price with respect to mark price value is 75%, yes or no? यस सर। And 75% value is 390. और आपको तो डिस्काउंट चाहिए ना, इट मीन्स 25% चाहिए, इट मीन्स जस्ट 1/3 ऑफ दिस वैल्यू एंड 1/3 ऑफ 390 विच इज डायरेक्टली 130। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे विदाउट एनी वैल्यू ऑफ मार्क प्राइस। मतलब आपने लास्ट में जो दो स्टेप एक्स्ट्रा काउंट किए to calculate the mark price, then take a difference of both values, mark price and selling price. इसकी नीड नहीं। Clear everyone? Yes, sir. Easy question है, बहुत easily handle होगा। Try to do it fast.
सर थोड़ा ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, एक बार समझा सकते हैं क्या? एक्चुअली क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉफिट earned for selling an article is rupee 832 is equal to the loss when the same article is sold for rupee 448. इट मीन्स ये दोनों आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। एक केस में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे केस में लॉस हो रहा है, बट फर्स्ट केस में जितना प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड केस में सेम लॉस हो रहा है। सो शॉर्ट वे में अगर मैं इसको डील करूं, सो इन दैट सिचुएशन जबकि इक्वल प्रॉफिट और इक्वल लॉस होगा, सो कॉस्ट प्राइस दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का मिड वैल्यू होगा, which is equal to 832 plus 448 divided by 2. It means 1280 by 2. So it is 640. ये तो हो गया शॉर्ट अप्रोच। कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस शॉर्ट अप्रोच क्या है? एक्चुअली उसने बोला प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, यही तो बोला। प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। So profit value, sorry, selling price at the time of profit is 832. Cost price remains same in both the situation, और loss के केस में selling price है आपका 448. It means twice of cost price is equal to 832 plus 448, और cost price is equal to 832 plus 448 divided by 2, which is equal to 640. Clear बेटा? यस सर। इन अदर वे आप ऐसे भी डील कर सकते थे। 832 आपको एक सेलिंग प्राइस ये गिवन है और 448 एक सेलिंग प्राइस ये गिवन है। सो इस पूरे रेंज के बीच का डिफरेंस कितना है? देखिए 832 एंड 448, इनका डिफरेंस निकालते हैं। सो दिस इज 384 sir. 384. Okay, so 384 is the difference in between both the selling price. And out of this 384 आपके पास according to statement profit and loss 2:1 के रेशियो, सॉरी 1:1 के रेशियो में है। इक्वल प्रॉफिट एंड इक्वल लॉस, इट मीन्स 1:1 के रेशियो में। सो 384 को आप 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, तो ऑब्वियसली ये कितना आया? 192। 192. यस। सो प्रॉफिट वाले सेलिंग प्राइस में इन केस आपने प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब भी आपको सेलिंग प्राइस मिल जाए, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू 640। अदरवाइज लॉस वाले केस में आप लॉस ऐड कर देंगे, तब भी आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी। सो बहुत से वेज हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes. चलिए अभी सेम क्वेश्चन है बट एक माइनर चेंज किया है। इन दिस पोजीशन प्रॉफिट अर्न फॉर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹900 इज डबल द लॉस when the same article is sold for ₹450. In the previous one, profit and loss are in ratio 1:1, but in this situation your profit and loss are in ratio 2:1. So जो थर्ड अप्रोच सॉल्व करी थी उसके अकॉर्डिंग बेस्ट अप्रोच क्या बनता है? सीधा सीधा डिफरेंस आ रहा है आपका 450 का, आपके पास फिगर्स भी इजी हैं, and out of this 450 profit and loss are in ratio 2:1. It means टोटल वैल्यू आपके पास जो 450 है इसको 2:1 में ब्रेक किया, विच इज 300 and 150। 900 में 600 300 सब्ट्रैक्ट किया, यू गॉट 300, एंड ऑल्सो 450 में 150 ऐड किया, इस सिचुएशन पर भी 300। इन बोथ सिचुएशन योर कॉस्ट प्राइस वैल्यू इज 600। इज इट क्लियर? Yes sir. हाँ। थर्ड क्वेश्चन अगेन सेम स्टेटमेंट पे है, केवल डेटा चेंज किया है। सो एक्सपेक्टेड है सबसे करेक्ट होना चाहिए। In this situation, your profit is 20 times the loss. It means profit and loss are in ratio 20:1. अदरवाइज आप ऐसा अप्रोच भी डील कर सकते हैं जैसा आप डिस्कस किया था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ लॉस।
It means 800 minus cost price is equal to 20 times of loss, which is cost price minus selling price. आप इसको सॉल्व करके भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज उस अप्रोच पर भी जा सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है. Yes, the correct one is 300. Everyone got same or any problem? Yes, sir. Same. Anuj? $800 and $275. The difference of both selling price is $525. Out of this, your profit and loss are in ratio 20:1. If you break this total value in 20:1 ratio, which is 525. 800 minus 500, 300, and 275 plus 25 is also 300. कोई भी अप्रोच फॉलो करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा. अनुज, नाउ क्लियर बेटा? Yes, sir. यस. अगेन चूंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, सो ये एज इट इज सेम क्वेश्चन है जैसे दो क्वेश्चंस आप आज के सेशन में ही डिस्कस कर चुके हैं. अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स in rupee 5400. He sell 2 by 3 of them at 5% profit. At what profit percent did he sell the remaining to gain 13% overall? डिपेंड करता है आपका स्ट्रेटजी क्या है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हम्म. 29% तो लोगों ने रिस्पॉन्स किया है. रेस्ट स्टूडेंट्स, मंजीत, सलोनी, अनुज. मंजीत का भी 29 है. यस सलोनी. सलोनी 5400 का कोई यूज किया है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? Yes, sir. किया है. तो 2/3 पार्ट कितना कैलकुलेट किया आपने? Sir, ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा. सॉल्व भी नहीं हो रहा. एक्चुअली आपने रॉन्ग अप्रोच लगा दिया है. सॉल्व तो खैर हो जाएगा वैसे भी, बट Sir, 2 by 3, 3600 आ रहा है. 2/3 को कैलकुलेट ही नहीं करना. मैंने अभी डिस्कस किया था, रिसेंटली 2 क्वेश्चन सॉल्व किए. सो Yes, ऑब्वियसली sir. 2/3, सो रिमेनिंग पार्ट इज 1/3. यस और नो? Yes, sir. सो मैंने क्या कहा था, इन दिस सिचुएशन आप टोटल वैल्यू को ऐसा कंसीडर करें जिसे इजीली ब्रेक कर पाए इन 2/3 एंड 1/3. तो मैंने 300 अगर टोटल वैल्यू कंसीडर करी, सो 200 एंड 100 आ गया. सलोनी, ये क्लियर हो रहा है? Yes, sir. From this part, according to question, 5% profit. At what profit percent did he sell the remaining? Remaining it means इस part के respect में वो पूछ रहा है. To gain 13% overall. Overall पर 13% का profit needed है. So 5% it means 10 rupees. 13% of this 300 it is 39 rupees.
ऑलरेडी 10 रुपीज का प्रॉफिट कवर हो चुका है फ्रॉम दिस पार्ट। टोटल आपको 39 रुपीज का प्रॉफिट रिक्वायर्ड है। इट मीन्स फ्रॉम दिस पार्ट आपको 29 रुपीज का प्रॉफिट और चाहिए। और अभी तो कैलकुलेशन भी नहीं करना है परसेंटेज का, बिकॉज दिस इज 100। अगर ये 100 के अलावा कुछ और होता तो एट लास्ट आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता, बिकॉज परसेंटेज इज द पार्ट आउट ऑफ 100। सो योर डायरेक्ट आंसर इज 29% विदाउट एनी कैलकुलेशन। Okay, sir. नाउ क्लियर? Yes, sir. अनुज गॉट इट? यस सर। चलो वो 5400 को जो हम लोग अप्रोच दिए वो मतलब दैट वाज लाइक अ रॉन्ग वन। हम ऑब्वियसली लोग इसके को रिस्पेक्ट में तो काफी लेंदी हो जाएगी। सॉल्व तो यस उससे भी होगा, बट उसमें कैलकुलेशन ज्यादा आया। यस सर। ऑब्वियसली जितना कैलकुलेशन रिड्यूस करेंगे उतना आपका टाइम सेव होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में। ओके सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक्स ऑफ परसेंटेज ओनली। A sell a pen to B at a gain of 20%. B sell it to C at a gain of 10%, and C sell it to D at a gain of 12.5%. If D pays 14.85, what did it cost for A? So actually simple percentage है। इवन अगर आपने परसेंटेज का सेशन कवर किया हो तो मैंने एज इट इज सेम लैंग्वेज के साथ में एक क्वेश्चन डील भी किया था। तो राठी जी एंड मंजीत, आप सब पॉइंट्स लगाना भूल गए। हाँ अभी ठीक Sir, है। 9.60. ये किसका आंसर आया 9.60? Sir, मेरा। बेटा कुछ तो गड़बड़ किया है इन कैलकुलेशन पार्ट। Sir, X मान कर नहीं। बेटा ये एक्स नाम की बीमारी से थोड़ा दूर रहिए। उन्हें बार बार कहा है कि ये एक्स अच्छी चीज नहीं है। देखिए, ए बी सी एंड डी, इनिशियली ए से स्टार्ट किया। ईच एंड एवरी वैल्यू इज 100% इन इटसेल्फ। सलोनी इससे तो अवेयर है ना कि किसी भी वैल्यू को आप ऑलवेज 100% लेंगे। Yes, sir. बी को उसने 20% प्रॉफिट पर सेल किया। इट मीन्स बी पर पहुंचकर ये वैल्यू हो गया 120%। यस और नो? Yes. अब B sell it to C at a gain of 10%. So 10% gain, it means अब डायरेक्टली 10 ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट 100, ये 120 है। 120 का 10% इट मीन्स 12 रुपीज मोर विच इज इक्वल टू 132। सो C के पास पहुंचकर ये वैल्यू हो गया 132%। क्लियर? Yes, sir. एंड लास्ट स्टेटमेंट जिसमें लिटिल बिट कैलकुलेशन है, C sell it to D at a gain of 12.5%. So 12.5%, if you know this value in terms of fraction is 1/8, तो या तो आप 12.5% निकालें, अदरवाइज 1/8 कर दें। सो 132 का 1/8 सॉल्व करते हैं, बेटा कितना मिलता है? 8 का टेबल तो एटलीस्ट सभी को आता है। सो 8 1 जा 8, ऑब्वियसली रेस्ट पार्ट इज 5, 52, 8 6 जा 48, 48 के बाद अगेन 4 मिला, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 16.5। इज इट क्लियर? Yes. और 16.5 प्लस करने पर डी का वैल्यू हो गया 148.5%। इज इट क्लियर? Yes, sir.
और ये वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ रुपीज गिवन है 14.85। सो अब मेरे को तो इतना सिमिलरिटी दिख रहा है इस डेटा में कि इजीली आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 10 रुपीज। क्लियर? Saloni got it? Yes, sir. Yes. Again ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में है। I think 30 seconds is sufficient to solve this. Question based on last class. At what percentage above the cost price must an article be marked so as to gain 33% after allowing a discount of 5%? Discuss किया था कि when profit percent and discount percent both are given to how to deal in this situation easily. मंजीत बेटा ये मिस्टेक आई थिंक पहले भी की थी आपने। एक्चुअली योर आंसर इज 40%, इट्स नॉट 140। यस। सो मैंने क्या डिस्कस किया था इन दिस सिचुएशन, फोकस ऑन सेलिंग प्राइस। सो 5% डिस्काउंट किस पर अप्लाई होगा? मार्क प्राइस पर। इट मीन्स ऑब्वियसली मार्क प्राइस 95% वैल्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस and 33% प्रॉफिट एप्लीकेबल ऑन कॉस्ट प्राइस। ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी सेलिंग प्राइस मिलेगा। इट मीन्स योर कॉस्ट प्राइस 133% value also is equal to selling price and both are equal. So 100 to 100 cancel, 19 5s are 19 7s are. So your mark price and cost price are in ratio 7:5. So in this position, if you take cost price as a 5 and mark price as a 7, so mark price कितना ज्यादा है with respect to cost price? 2 rupees. बट चूंकि कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं सो डिवाइड बाय 5 टू गेट द परसेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100। यस दिस इज 40%। अब इसी क्वेश्चन में देखिए लैंग्वेज डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा। अगर वो एट लास्ट आपसे ये पूछता कि मार्क प्राइस इज हाउ मच परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, देन योर आंसर इज 140%। बट उसने पूछा how much percentage more, so your answer is 40%. Clear everyone? Yes, sir. Yes, Mr. Anuj. Yes, sir. Clear. Anyone having any doubt in the complete session or everything is fine? Everything is fine, sir. Okay, guys, so this is the end of the session. Thank you, everyone. Good day. Thank you, sir. Thank you, sir.